Do you ever feel like breaking the rules? Do you ever feel like talking all inside and out? Embrace the messiness of life. Blast out loud, leave your sanity at a door. Let in and let out all that's in your mind. It's a roller coaster ride of views and emotion. Unscripted party while in endless conversation. In a small talk with Koko. Because my father also comes from a very poor background. कि अरुणाचल मेन पार्ट 2 आ रहा है क्या? आप जब कोई फिल्म बना रहे हो तो उसमें आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फिल्म स्कूल. फैमिली में इक्वेशन कैसा है? आई होप आई एम ए गुड सन. Black Hole presents Small Talk with Koko season 2 and welcome to the another episode of Small Talk, and in today's episode we have the promising filmmaker from Arunachal Pradesh, Mr. Nyago Ete. And आज के इस episode में I had much fun exploring his journey and behind the stories. बहुत सारी चीज़ आज के इस episode में आपको सुनने को मिलेगा. And before we go to the episode, I want to mention that today we are shooting in this beautiful studio, Ragi Studio, and I am wearing the beautiful shirt from Ganam, and my refreshment partner is Joe's Kitchen, and my hamper partner is not to mention Muri Monk. Enjoy the episode. So finally Nyago is here. Nyago, welcome to Small Talk. Thank you so much. And I want to know कि अभी first of all congratulations, संगी गाय आने वाला है. Thank you again. And I wanted to know कि जब हम आपको शो के लिए अप्रोच किया था, like how was your, what was your feeling? I was really glad. I was really थोड़ा nervous. मूवी फिसल गया. I'm not good in front of camera, so sorry. It's okay. Okay. I was really glad that you invited me for this, and काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी यूनिक है आपका टॉक शो, and it's my privilege that I'm here. Have you watched my episode? Yes, all of them. Okay. Yeah, I've noticed that one thing about you, that you're a shy person. थोड़ा बहुत हम भी research किया था, and I saw you on screen. Sometimes you're like आप खुद के जोन में कभी-कभी चला जाते हैं. That's what I have noticed. So I thought कि यहाँ पे थोड़ा सा candid करते हैं, unfiltered करते हैं, and are you feeling comfortable? Yeah. I'm not just that good in front of camera, so. So क्या लाइफ में अभी क्या चल रहा है? अभी तो वही संगी गाय अपना जो रिलीज़ होने वाला है तो उसी के लिए हम लोग पुश कर रहे हैं, एंड इट्स रिलीजिंग ऑन 7th of December. फिर आफ्टर दैट आई हैव अनदर प्रोजेक्ट लाइंड अप in Namsai. That will be another feature film, which I am working as a cinematographer. Okay, I've heard about it. मेरा भी friends है नाम से वो लोग बोल रहा था. Okay. The budget is also high. I heard. हाँ, because it is a grant that is given by NFDC, National Film Development Corporation, which comes under Information and Broadcast Ministry. तो हर साल नहीं, every 2 years में वो लोग ऐसा grants देते हैं फिल्म मेकर्स को. तो anyone can apply. Whoever is willing, and has a good script, they can pitch it to them. और अगर आपका अप्रूव होता है तो आपको उनकी तरफ से कुछ ग्रांट्स फंड्स मिलते हैं, एंड आप अपना फिल्म बना सकते हैं. तो ये काफ़ी एक मोटिवेशन होता है हम लोग के लिए भी, क्योंकि यहाँ फिल्म बनाने के लिए हमें प्रोड्यूसर्स मिलते भी बहुत कम हैं, एंड मिलते हैं तो भी दे आर लाइक कि नहीं ऐसा बनाओ वैसा करो. बट NFDC गिव्स यू कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर फिल्म. आप अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है तो लाइक ओके. Okay, is it the first Arunachali movie? नो, NFDC का एक और प्रोजेक्ट था जो अभी हमने 3 months पहले शूट किया था. इट्स कॉल्ड कारकन. इट वाज ग्रांटेड टू नेंडिंग लोडर. तो आई डिड सिनेमाटोग्राफी इन दैट ऑल्सो. तो फिर ये अभी जो सेकंड वाला दो फिल्म्स को मिला था, तो जो ये दूसरा वाला मिला उसमें भी मैं कैमरा कर रहा हूँ. Okay, so let's talk about like I've heard like from someone, like I can't name the source, but I've heard कि you were given an ultimatum from your father. I don't know कि ये कुछ इतना मूवी पसंद है तो कुछ इतना span of time में like you have to prove yourself. ऐसा कुछ है क्या story? Ultimatum exactly नहीं, but obviously like every parents is concerned and worried about their kids' future. So जब मैं
कॉलेज में मास कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए उनको बोला, सो दे वर लाइक इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा, ये क्या है, बिकॉज माई फादर ऑल्सो कम्स फ्रॉम ए वेरी पुअर बैकग्राउंड. उनका जो मेरा जो ग्रैंडफादर है, ही यूज टू यू नो लाइक खेती वगैरह करके जो चावल बेच के अपने मेरे फादर को पढ़ाया. तो ही हैज़ वर्क रियली हार्ड टू रीच वेयर ही इज़ नाउ. तो ऑब्वियसली एज ए कंसर्न पेरेंट उनका भी वो जायज़ बनता है कि अपने बच्चे के लिए भी वो चिंता होना. तो वही था, कभी रोका नहीं, पर उनका यही था कि अगर तुम्हें सीरियसली करना है तो तुम्हें, बिकॉज आई वॉज ए रियली बैड स्टूडेंट. मेरा फिजिक्स में भी, हाँ स्टडीज, क्लास 12 में भी मेरा फिजिक्स में भी कंपार्टमेंट हुआ था. तो आई एम रिवीलिंग इट इन पब्लिक नाउ. तो हाँ, तो मतलब उस कारण भी दे वर ऑल्सो वरीड कि अरे क्या होगा फिर. सो व्हेन आई वेंट टू डू माई मास कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद भी मतलब ठीक है, ये तो अभी कॉलेज हो गया, नेक्स्ट व्हाट, अभी कैरियर कैसे बनाना है इसमें. तो उसके बाद फिर मुझे FTI के बारे में पता चला. ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पूना में है. तो वहाँ फिर मैंने सिनेमाटोग्राफी के लिए अप्लाई किया, और लकीली हर साल उन ST में से सिर्फ एक ही सीट होता है, तो मुझे मिला 2018 में. एंड फाइनली जो ख़त्म होना चाहिए 2021 में, वो ख़त्म हुआ 2023 में बिकॉज ऑफ कोविड. तो हाँ, उसके बाद मतलब उस दौरान काम भी करता था, पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन ऑब्वियसली आपसे एज भी तो आपका आगे बढ़ रहा है, तो यू हैव टू वर्क ऑल्सो. तो उस दौरान काम भी किया कुछ, तो समहाउ अपने लिए काम निकालता था. फिर कुछ छोटा मोटा फिल्म फेस्टिवल्स में सिलेक्ट होता था, तो उनको भी बिलीव होने लगा अल्टीमेटली कि हाँ चलो ये एटलीस्ट अपना तो सर्वाइवल कर लेगा. आई वांट टू नो हाउ डिड यू एक्सप्लेन हिम कि सिनेमेटोग्राफर क्या होते हैं. They still don't know about it, so they still have not clear idea कि क्या होता है exactly. उनको लगता है कि हाँ, जैसे कि फिर अपना ही भैया का वेडिंग हो गया, चलो तब तो तुम वीडियो खींचो, फोटो खींचो. तो मेरा डिसिप्लिन सिनेमाटोग्राफी में भी फिल्म मेकिंग में फोकस है. तो जैसे किसी का होता है सिनेमाटोग्राफी, दे डू वेडिंग फिल्म मेकर्स. जैसे आई हैव ए गुड फ्रेंड आशीष हु डज ए रियली गुड वेडिंग फिल्म मेकिंग, अच्छा फिल्म बनाता है वेडिंग फिल्म्स. फिर उसी तरह फिर मेरा यचंग चेन जो म्यूजिक वीडियोस अच्छा बनाता है. तो सबका अलग अलग डिसिप्लिन रहता है. तो मेरा फोकस था कि मुझे फिल्म्स ही बनाना है, क्योंकि मेरा पैशन उसी में है. ये लाइन में जब गया तो फिल्म्स देख के गया था. उसके लिए सबसे बड़ा मेरा एक मोटिवेशन है अपना संगीत जी, जिनका क्रॉसिंग ब्रिजेस, ही वाज द फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम आवर, आई थिंक फर्स्ट फ्रॉम आवर अरुणाचल टू गो इनटू ए फिल्म स्कूल. तो उनको देख के बाद, ही इज़ अ डायरेक्शन स्टूडेंट, तो उनको देख के काफ़ी मुझे इंस्पिरेशन मिला था. ओके, सो अभी कैसा है, लाइक हाउ इज योर फादर रिएक्टिंग. अभी तो काइंड ऑफ यू हैव एस्टैब्लिश योरसेल्फ ना, तो अभी लाइक अगर यहाँ पे लाइक इफ यू टॉक अबाउट अरुणाचल स्पेसिफिकली, तो यू आर लाइक समवन लाइक जो जिसमें पोटेंशियल है. थैंक यू. थैंक यू. That is what I feel, क्योंकि you and Morto and like you guys are doing like some like ऐसा कुछ कर रहे हैं, like people are getting boosted up ना watching your work. So अभी like कैसा है, like how they are reacting, especially your father. They are happy because अभी तो I am self sufficient ना, उनसे कुछ लेते हैं. Obviously I stay. Okay, you're like monetary. हाँ, monetary अपना pocket अपना I handle myself. तो obviously एक parents के लिए तो आपका बच्चा 25 के above होने के बाद if they are earning their own money, उनका एक burden कम हो जाता है. And obviously he is retired, so I cannot you know एक ऐसे responsible son बनना भी नहीं चाहिए कि I should be asking him or my family for any money. तो हाँ, उस वे में तो I think he is happy, but obviously ऐसे career growth अभी भी काफ़ी आगे जाना है. तो अरुणाचल में तो क्योंकि एज यू नो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफ़ी छोटा है, और उसमें से सबसे लास्ट में आता है फिल्म्स. म्यूज़िक बोलो पर भी देयर इज ए स्कोप फॉर इट, आर्ट बोलो पर भी देयर इज ए स्कोप फॉर इट, बिकॉज आपको कॉन्ट्रेक्चुअल काम कुछ भी, आजकल तो गवर्नमेंट भी जो अपना हारमोनी क्या वॉल ऑफ हारमोनी, वो सब का भी इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट निकलता है. ऐसा काफ़ी काम मिल जाता है. म्यूजिशियंस का तो ऑब्वियसली कंसर्ट मिलता है, बट एज अ फिल्म मेकर आपको एक तो पहले प्रूव करना पड़ता है कि क्यों देखूँ आपका फिल्म. पब्लिक विल बी लाइक व्हाई शुड वी वॉच योर फिल्म. तो एक तो वो प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं, ये आपका टाइम के लिए आपका टाइम का वर्थ है, वो पहले प्रूफ करना पड़ता है. फिर हाँ, आप इसको पैसे दे के देखो, वो भी एक इशू होता है. तो हाँ, इन दैट वे ऑब्वियसली देयर इज ए लॉन्ग जर्नी अहेड. आई स्टिल कंसिडर कि आई एम जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी. एंड उससे पहले जो था वो तो लर्निंग था. आई डोंट कंसिडर इट कि आई हैव कम समवेयर, आई हैव रीच्ड समवेयर. आई जस्ट लाइक आई हैव लर्नड समथिंग, आई नीड टू फ्लोरिश इन दैट नाउ. Okay, it's good to hear. Like, still you're humble, no? So let's talk about the actors, the payment. ये सब जो होता है procedure, like जब कुछ project होता है, some people do it voluntarily. And if we talk about your film, Arunachal Man, जो I think अभी तक का थोड़ा एक अच्छा मूवी ना, अगर हम बोले तो it's like
अरुणाचल में, तो उसमें कैसे, हाउ डिड यू मैनेज? सो अरुणाचल में हमने बनाया था 2017 में, एंड इट वाज प्योरली आउट ऑफ पैशन. हम लाइक आई जस्ट कंप्लीटेड माय मास कम्युनिकेशन, एंड एज यू मेंशन मोर्तो, ही इज़ अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो फिर हम लोग मिले एंड लाइक हमें कुछ तो बनाना है, वी नीड टू मेक समथिंग. तो वी कोलाबरेटेड, मोर्तो, बिदा, एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल. तो मेरा जो कॉलेज का एजाज, स्टैंजिन वगैरह भी जो लद्दाख का है, केरला का है, वो लोग भी आए थे. तो उनको क्लियरली बोल दिया था कि देखिए यहाँ तो कुछ इंडस्ट्री नहीं है. तब तो फिल्म थिएटर्स भी नहीं होते थे अपने यहाँ. देयर वाज ओनली वन थिएटर, नाहरलगन का नेशनल सिनेमा हॉल. तब उन लोग सब वॉलंटरीली आए, बट ऑब्वियसली उनका आना जाना, उनका रहना वाज लुक्ड आफ्टर. बट इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑब्वियसली एक्टर्स को तो दिया था, बट वेरी वेरी माइन्यूट, बहुत छोटा सा अमाउंट था वो भी, जो जिसको पे भी किया था. how did you manage the fund? So that was backed by obviously my family. At that time Okay. तो I was just 21 years old. So तो उस समय तो means of earning भी नहीं था मेरे पास. और उस समय I have not decided कि I want to pursue cinematography also. तो Arunachal man also plays a very important role in my life, that I realized that नहीं, एक discipline तो मुझे करना है, and which intrigues me more was cinematography. तो उसको बनाते वक्त हाँ, आई विल बी रियली थैंकफुल, आई एम स्टिल वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल दैट वर इन्वॉल्व इन मेकिंग दैट फिल्म पॉसिबल. क्योंकि वो फिल्म काफ़ी छोटा बजट में बना था. बजट भी नहीं, जो हम लोग यहाँ में पार्टी में आदमी लोग ऐसे ही उड़ा देते, उस बजट में बना था होगा. एंड वो प्योरली आउट ऑफ पैशन था. Okay, so the film really ended in one एक नोट पे जहाँ पे like the viewers were expecting कि उसका part 2 भी आएगा. So like अभी like I really want to curtains down on this one question. सबका जो दिमाग में है कि अरुणाचल में part 2 आ रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दैट वाज समथिंग, यू नो, तब मैं छोटा भी था, तो सुपर हीरो मूवीज़ ये सब काफ़ी इंट्रिग होता था मुझे. लेकिन उसके बाद फिल्म स्कूल जानने के बाद व्हेन आई फाउंड अबाउट वर्ल्ड सिनेमा एंड मेनी अदर, आपका जो दुनिया में अलग अलग टाइप का फिल्म्स होते हैं, तो वो सब डिस्कवर करने के बाद समवेयर आई थिंक दैट इज लेफ्ट बिहाइंड, आई हैव लेफ्ट इट बिहाइंड. तो आई डोंट थिंक सो. Okay, there's no Arunachal man. There's no announcement part 2 from my side at least. हाँ, but if anybody else wants to make. And I forgot to mention, ये जो आपने पूछा ये फाइनेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू में, उसमें नाबम काटुम करके है. ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रियली रिनाउंड person in this field. So he was also, like a backer in this film. He was also a co-producer. So he really pushed me also. And I'll always be thankful because जब हम लोगों को कुछ टेक्निकल, तब के समय में जो टेक्निकल नॉलेज नहीं होता था, तो हम लोग हाँ खातूंग भैया इसको कैसे करना है, जो भी होगा एडिटिंग से रिलेटेड, आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो कातुंग भैया was really there for us, still there for us, and obviously many of the people who is in this field knows him very well. Yeah, अच्छा है. And like एज ए डायरेक्टर जब एक मूवी एक प्रपोज होता है कि बनेगा बोल के, तो उसमें लाइक हाउ डू यू गो विद लाइक जो कास्टिंग होते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर, लाइक यू मे लाइक सेटअप वन कास्टिंग ऑडिशन, ऐसा सेटअप होता है क्या? हाँ, जनरली तो जैसे कि जब मैंने स्पेशली अभी जो रिसेंट फिल्म की बात करूँ, तो व्हेन आई वाज राइटिंग इट, आई हैड द कैरेक्टर इन माय माइंड कि आई वांट दैट गाय टू प्ले इट. ओके, सम कैरेक्टर. हाँ, सम कैरेक्टर्स, बट अदर कैरेक्टर्स के लिए ऑब्वियसली ओपन ऑडिशन होता है. सो जैसे कि आजकल अपने स्टेट में भी इतना प्लेस वगैरह हो रहा है, तो देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स कमिंग अप, तो उनके लिए भी ओपन कॉल होता है. हूएवर अप्लाइज उनका ऑडिशन लेते हैं, अगर अच्छा हुआ तो उनको एक सेशन के लिए बुलाते हैं, फिर उसमें भी बैठा तो देन वी टेक देम इनटू आवर फिल्म. बट जैसे कि मेरा माइंड में हो गया कि नहीं मुझे वो एक्टर चाहिए, बट उसने ऑडिशन भी अप्लाई नहीं किया, सो आई पर्सनली अप्रोच देम कि एक ऐसा रोल है आपके लिए, कैन यू डू इट. तो अगर उनका टाइम मैच होता है तो डेफिनेटली. Okay, so let's talk about the actors of Arunachal. So who do you see like has a potential? Obviously, I don't have to mention Palin's name. He is definitely there. But recently when I went for the play of Andhar, and there was this guy called, I don't remember his Okay, name. just tell me the character. हम बोल देगा. He was playing no, क्या था वो? The guy who gets, the main guy who doesn't get the job. Oh, Bole. I don't know. Bole. Aspirant. And yeah. Bole Bole Dave. Bole Dave and Soni Tasar also was playing, and Monya. These three really stood out for me. Okay, I think अभी उन लोगों को सुन के अच्छा लगेगा क्योंकि this is going to broadcast, तो especially Bole. Hopefully we work soon. Okay, let's see. तब तो like और जैसे let's come to Sangi Gai. तो उसका like how the project happened, like you wrote everything, the story. No. So story is mine, but the screenplay has been written by Mankab. Okay. He is also
one of my junior in FTI. He's also from Arunachal. He's from Longding. तो वो भी FTI में डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले राइटिंग का कोर्स कर रहा है. तो उसने लिखा ये स्क्रीन प्ले. स्टोरी मेरा और उसका दोनों का है. So I had this idea in my mind that I want to tell something. A story मेरे माइंड में था कि एक रूटेड हो. और एक आजकल के जैसे सोसाइटियल चेंज हो रहा है अपना. How we are leaving behind our own culture and identity in terms of modernization और westernization के नाम पे. तो उसको लेते हुए मुझे कुछ लिखना था और कुछ बनाना था. तो आई अप्रोच्ड हिम कि ऐसा ऐसा है, आई वांट दिस गाय टू ट्रैवल फ्रॉम हियर टू हियर, ऐसा ऐसा. तो ही वो डॉट्स को जोड़ के एक अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा. सो लाइक स्क्रीन प्ले लिखने में कितना समय लगा? हाँ, तो स्क्रीन प्ले जैसे कि जब हमने आई थिंक इट टुक अस ऑलमोस्ट 4 months. तो वो उसका भी हम लोग का FTI का तब लॉकडाउन सब ऑब्वियसली तब सब कुछ बंद हो गया था. तो बीच में कुछ महीने के लिए थोड़ा सा ओपन हुआ था. तो उसको मैंने लॉन्गडिंग से इधर बुला लिया ईटानगर में. और फिर लॉकडाउन लग गया. तो हम लोग 4 महीने घर के अंदर बैठ के सिर्फ राइटिंग. ओके, देन तो उसको बोल आप लोग के लिए लॉकडाउन अच्छा हो गया, लाइक प्रोडक्टिव. हाँ, प्रोडक्टिव हो गया. तो आई टोल्ड हिम कि यू डोंट वरी अबाउट हिम. और लॉकडाउन में कोई नहीं था तो मैं उसके लिए खाना बनाता था पूरा. यू जस्ट फोकस ऑन द राइटिंग. मेरा घटिया वाला कुकिंग भी खा लिया उसने चुपचाप. ओके, सो इसमें भी कुछ कुछ जो कैरेक्टर था जो आप पहले से सोच के रखा था कि दिस एक्टर्स आर गोइंग टू प्ले. यस, बिकॉज जैसे हमारे फिल्म में टीजर में आपने देखा, अगर देखा है तो टुगुंगा जो कैरेक्टर है, आई वांटेड हिम टू बी प्लेड बाय हिम बिकॉज आई वांटेड समवन whom people can relate also, because फिल्म में वो एक हिंदी प्रोफेसर का रोल प्ले करता है, द कैरेक्टर जो होता है. और ही टॉक्स अबाउट the loss of identity, the loss of culture, but he himself is teaching in Hindi in institute because we don't have any written manuscript that we can teach our institute, right? So उसको भी as a means of earning he has to learn, take up Hindi, English literature में भी. अगर आप अपना गालो निशी वगैरह में भी लिटरेचर अगर प्रॉपरली CBFC बोलता हूँ, सॉरी वो तो फिल्म का हो गया, CBSE का होता है तो ऑब्वियसली मेनी ऑफ अस कुड हैव टेकन दैट, राइट. अगर मेरे बचपन में स्कूल में गालो का वो लिटरेचर वाला था, आई कुड हैव टेकन अप दैट. तो उसी तरह मतलब जैसे हमारे फिल्म में भी वो होता है कि कैरेक्टर को हिंदी लेना पड़ता है बिकॉज ही हैज़ टू सर्वाइव इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ऑल्सो. बट थ्रू हिज गेज, थ्रू देयर पर्सपेक्टिव we have a social commentary in the film about all these things. Okay, so what are you expecting? How it's going to be like? I hope so people come for it because it's something I think different we are offering in terms of film. Because abhi matlab even if you compare it with my previous film Arunachal Man also, that's why it took me 5 years 6 years to make another film. Kyunki I wanted something, I want to change the graph of Arunachal and how people make films here, how people see films here. Because abhi regional films bolne se, not everyone but many of them has a perspective ki local film aisa hoga to aisa hoga, nahi dekhega, aisa type ka they have a perspective. So we definitely want to change that. And that's why we have brought this film which is releasing on 7th of December. So I could like everyone to come for it. Okay, so just now you mentioned that perspective of people about Arunachal film, na? So what do you think कि कितने सालों में that we'll reach to that level where like we'll have our own taste of cinema? It might take 1 month also, it might take another 10 years also. It's up to the filmmakers like us that what we are offering to the audience. If we keep offering something which they will keep rejecting or keep mocking it, keep making fun of it, वो कभी नहीं बदलेगा. But you offer something which is new to them, something which is relevant to them, something which is, unique, which you can show it to the whole world. You can show it to anyone without any hesitation. Then वो आपका 1 साल, 1 महीना, 2 साल में भी बदल सकता है. But it's the responsibility of the filmmakers that आप क्या present कर रहे हो public को, what you are making. So if we talk about the other filmmakers, so what do you feel कि किसका आगे में जाके that person can be more productive? Or recently आपने have you seen any movies like Arunachal का जो like you felt कि हाँ ये थोड़ा ठीक था ऐसा? I don't miss any of the local films. जितना भी निकलता है सब देखता हूँ. And I think कि हर किसी में वो potential है. It's just a matter of guidation and the matter of their own perspective that they bring to the film. तो रिसेंटली बोलने से तो जैसे मोर्तो का फिल्म देखा था, काफ़ी अच्छा लगा. एंड ही हैज़ अ यूनिक टच टू इट ऑल्सो. तो आई थिंक मोर्तो का नेक्स्ट फिल्म के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. एंड आई थिंक ही कैन रियली ब्रिंग अप समथिंग न्यू ऑल्सो. And I feel like Morto can be a good actor. Like he has acted in so many of my short films.
ही हैज एक्टेड ओवर लाइक 5-6 शॉर्ट फिल्म्स में किया है उसको, लेकिन अभी वो थोड़ा शाई हो रहा है नहीं करना है उसको भी I एक्टिंग. have bing watched all the videos. जब लॉकडाउन हो रहा था I watched everything, लाइटर मैन से लेके सब कुछ से लेके समथिंग फीट 6 feet हाँ 6 feet अंडर में. वो भी देखा. लाइक आई थिंक हम सब वीडियो देख लिया था. देन आई Okay. केम टू नो कि अच्छा मोर तो एक्टिंग भी करता है उनके ना. आई थिंक ही हैज लाइक कुछ है उसका सिने लाइक कैमरा का अच्छा उसका वो है. हाँ ही शुड कंटिन्यू. वो डायरेक्टर भी बन सकते हैं, वही एक्टर भी वही. बन सकते हैं. सो लाइक कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो हम पूछ रहा था, डू यू थिंक हम लोग का लोग जो लाइक दे जस्ट they just start doing the experiment without learning the craft? ये बहुत होता है यहाँ पे. Like do you feel कि अगर किसी के पास potential है, anyone wants to continue in this field, तो उन लोगों को craft सीखना चाहिए. As like you also, like after making Arunachal Man, you have joined, like you applied for FTI ना. So do you think कि ऐसा होना चाहिए like? हाँ मतलब क्राफ्ट आप ऐसा है कि यू कैन लर्न इट ऑन द प्रोसेस ऑल्सो. द बिगेस्ट फिल्म स्कूल इज मेकिंग द फिल्म इटसेल्फ. आप जब कोई फिल्म बना रहे हो तो उसमें आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फिल्म स्कूल. फिल्म स्कूल में भी जाके आप हाँ ऑब्वियसली यू गेट योर बेसिक्स करेक्टेड. आप जो एक फिल्म बना के सीखोगे वो आपको कोई बता देता है कि ये नहीं करना है. बट ऑब्वियसली जैसे आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ यूट्यूब है, जहाँ भर भर के ट्यूटोरियल्स वीडियो DIYs वीडियो वगैरह है, आई डोंट नेसेसरली थिंक कि किसी को जाना ज़रूरी है फिल्म स्कूल भी. आई वेंट बिकॉज एट दैट टाइम ऑब्वियसली I had to study also, but if somebody is like already they have completed their education, but उनको suddenly फिल्म का अर्ज है, I don't necessarily think कि फिल्म स्कूल जाना ज़रूरी है. फिल्म स्कूल जाने से हाँ एक आपको एक माहौल मिलता है, आपको एक कम्युनिटी मिलता है which helps you in growth also and in terms of getting work also. But अगर आप जैसे पैशनेटली फिल्म में, जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रीमा दास. She I don't know if this information is correct or not, but she went to Bombay to become an actress. But I hope so it's correct. I don't know. I've read somewhere. So she went to Bombay to become an actress. But वहाँ जाके she got more interest and more intrigue into filmmaking. So उसका भी जो recent film था अपना ये तोरा सस्पेंड. That in that film many of my friends from FTI were working as a location as a sound recorders, as a gaffer, as a focus puller. तो उनका भी ऐसा ही रहता है, छोटा सा crew रहता है. Nobody is like प्योरली प्रोफेशनल बट दे हैव जस्ट कम आउट फ्रॉम फिल्म स्कूल या फिर अभी भी पढ़ रहे हैं, ऐसा लोग था. बट इट्स हाउ द मेन डायरेक्टर हैज़ अ विजन टू हिज और हर फिल्म. सो इसलिए नेसेसरीली नहीं है कि आपको क्राफ्ट को रिफाइनली कहीं जाके सीखना ज़रूरी है. आप यहाँ भी रहे कि सबसे बड़ा एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है जाचंग चेन बोल के, ही यूज्ड टू डू वेडिंग्स वगैरह इवेंट करता था. बट अभी अगर म्यूजिक वीडियो आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो 10 में से 9-8 तो उसी का शूट किया हो रहता है. तो ही हैज़ ऑल्सो नॉट गॉन टू ए फिल्म स्कूल, ही हैज़ ऑल्सो नॉट लर्न फ्रॉम एनीवेयर, बट ही हैज़ लर्न इट फ्रॉम हिमसेल्फ. वो खुद यूट्यूब देख के खुद प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट बोलते हैं ना, वैसा ही है. सो लाइक अभी यहाँ पे मोस्टली हम लोग का जो लोग है लाइक दे ऑल वांट टू बी ऑन स्क्रीन ना ज़्यादातर. बट एक मूवी को बनने के लिए दे आर लाइक सो मेनी टेक्निकल पीपल आर नीडेड. तो डू यू थिंक कि हम लोग आदमी लोग को भी जाके थोड़ा लाइक अपार्ट फ्रॉम एक्टर टेक्निकल चीज़ भी करता है. यू चोज सिनेमेटोग्राफर ना, ऐसा समथिंग क्या क्या हो सकता है? अभी तो है काफ़ी. आई नो मेनी पीपल, आई नो ओवर 100 पीपल इन अरुणाचल हु आर इनटू टेक्निकल डिपार्टमेंट्स. और देयर आर लॉट ऑफ इट, सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिज़ाइनिंग, लोकेशन साउंड, आपका एडिटिंग, VFX, कलर ग्रेडिंग, ऐसा बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है जो वहाँ आप फोकस कर सकते हैं. तो जैसे हम आई स्टिल फील कि अरुणाचल में साउंड डिज़ाइनर्स एंड लोकेशन साउंड्स का काफ़ी कमी है. सिनेमेटोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स बहुत है जो अच्छा काम कर रहे हैं. बट आई थिंक साउंड वाइज वी नीड मोर पीपल. तो हम लोग के लिए भी आसान होगा, बाहर से बुलाना नहीं पड़ेगा साउंड के लिए. इनको VFX सीखने से तो और अच्छा है ना. हाँ और अच्छा है. तो जैसे अपना फिल्म का VFX जो नाबा माबो किया है वो अरुणाचल ही है. वो भी फिल्म स्कूल कनाडा में कहीं में तो पढ़ के आया था. तो ही इज ऑल्सो नॉट परस्यूइंग इट बिकॉज यहाँ इंडस्ट्री नहीं था. बट समहाउ आई गॉट टू नो अबाउट हिम. तो मैं उसको जाके अप्रोच किया कि अब भाई ऐसा है. ओके, तो देखना पड़ेगा संगी गाय. एंड अगर हम लाइक इफ यू टॉक अबाउट अरुणाचल फिल्म इंडस्ट्री जो कि अभी बर्डिंग स्टेज पे है, एंड लाइक यहाँ का आई वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन द अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल? So Last time like some contractor they were doing the event na, and I heard कि लोगों ने boycott भी किया, like there are some segment. obviously I think it was an open tender given by
IPR. So जिन्होंने अप्लाई आई हर्ड कि नॉट मैनी पीपल अप्लाइड ऑल्सो. सो दो लोग ही अप्लाई किया था, उसमें से एक किसी को मिल गया. सो दैट हाउ दैट हैपन. सो आई स्टिल फील कि अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल बेटर हो सकता है, बिकॉज दैट इज़ वन इवेंट इन विच द गवर्नमेंट इज ऑल्सो बैकिंग फिल्म मेकर्स ऑफ अरुणाचल. आपको थिएटर्स दे रहा है फिल्म दिखाने के लिए, आपको स्पेस दे रहा है, एंड वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू देम, राइट? एंड देयर इज अ प्राइज मनी ऑल्सो फॉर द पीपल हु एवर विन्स द अवार्ड. सो आई थिंक वी ऑल फिल्म मेकर्स नीड टू कम टुगेदर, एंड ऑब्वियसली वो अपना IPR डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक वायबल सोल्यूशन निकालना चाहिए कि हाउ वी कैन मेक इट बेटर. Do you think they should include more filmmakers जो Definitely. practically जो काम कर रहे हैं? Definitely. Did you attend it last year? No, मैं यहाँ कुछ भी आई डोंट मिस एनीथिंग. लाइक आई सेड, कोई भी लोकल फिल्म हो, कुछ भी फिल्म रिलेटेड इवेंट वगैरह कुछ भी, आई डोंट मिस एनीथिंग. आई एम ऑलवेज देयर, even I have not contributing anything to it, but I just attend it. So I always attend everything. So let's talk about भेड़िया, जहाँ पे आप कैमरा डिपार्टमेंट में था ना. जी. तो लाइक अब जब आप मूवी बनाते हैं अरुणाचल में, यू आर द डायरेक्टर एंड आपके अंदर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बट इन भेड़िया यू वर्क अंडर समवन. तो कैसा था वो डिफरेंस एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? भेड़िया में काम करना तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ में. आई असिस्टेड जिष्णु भट्टाचार्य जी. उससे पहले उन्होंने आपका ये परी, मर्दानी 2 ये सब शूट किया था. तो उस फिल्म में तो उनके अंदर काम करके बहुत नॉलेज सीखने को मिला मुझे. बट मोर देन डैट, अमर सर के साथ काम करने का मौका मिला, बिकॉज आई मेट हिम ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग ऑफ हिज फिल्म आबा इन 2017. आई मेट हिम इन अरुणाचल, ईटानगर में मिला था. तो उस दौरान उसके साथ बैठ के थोड़ा सा इंटरेक्शन सेशन हुआ था. एट दैट टाइम ही वाज आल्सो जस्ट असिस्टिंग इन बॉम्बे. वो भी अपना कुछ हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं बनाया था, डेब्यू नहीं किया था बॉलीवुड में उन्होंने. तो उस समय उन्होंने भी मुझे बोला था कि फिल्म स्कूल जाओ, ये सब है. आई आस्क्ड हिम फॉर गाइडेंस. तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा करो, वो करो, फिल्म स्कूल जाओ. तो उस समय मुझे अपना डिसिप्लिन भी पता चला कि आई वांट टू फोकस मोर ऑन सिनेमाटोग्राफी आल्सो विद अरुणाचल मैन एंड विद हिज सजेशन आल्सो. देन आफ्टर दैट, working in that film, working with him in Bhediya was a very very beautiful experience, because मैं कैमरा में तो था ही, लेकिन उनके साथ भी जाके बीच में ब्रेक में सेशंस में, सर ये सीन कैसे डिज़ाइन किया आपने, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट दिस सीन, ये सब भी काफ़ी सीखने को मिला. तो इसलिए मेरे लिए कोई प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज अप फॉर लर्निंग. अगर मुझे दोबारा भी कहीं भी असिस्ट करने का मौका भी मिले, अरुणाचल में कोई अच्छा फिल्म बना रहा है एंड आई वांट टू वर्क अंडर हिम, आई एम विलिंग, आई एम रेडी टू लर्न, आई एम रेडी टू टेक द नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर एवरीवेयर. वो छोड़ना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज नॉलेज इज समथिंग विच विच जो आप जिंदगी भर, उम्र भर आप ले सकते हो. द डे यू थिंक कि हाँ भाई नहीं, मैंने सीख लिया, आई हैव लर्न एनफ, दैट इज द डे यू स्टॉप ग्रोइंग. सो आई वांट टू कीप ग्रो एवरी डे एंड एवरी डे. So that why Bhediya is a very 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 good experience for me. So like अभी जब ये सांगी गाई में you've used the all the learning from Bhediya in Sangi Gai. Definitely I have used it, especially how to work with an actor, how to collaborate with an actor. ये सब काफ़ी सीखने को मिला था Bhediya में. और in terms of cinematography, how to approach a lighting, how to design your shots. तो I took knowledge in these 2 departments. एक डिपार्टमेंट में होके लेकिन दोनों डिपार्टमेंट का नॉलेज चुराया वहाँ से. Okay, so if you talk about your movie Sangi Gai जो आ रहा है, so वहाँ पे like कभी ऐसा हुआ like you felt कि ये actor like somebody like ज़्यादा ही अच्छा कर दिया, that you were shocked, ऐसा कुछ moment हुआ? Definitely. तो if you especially सबने अच्छा किया था, लेकिन especially this guy, if you remember, इसका काफ़ी मीम वायरल हुआ था, जागीर करके. क्यों किया तूने ऐसा बोलना, वो वाला. Okay, that lady. हाँ, that lady के साथ जो एक्टर था, the guy who was playing the lead. Okay. So he's also there in our film. The gold digger guy ना? हाँ, the gold digger guy. His name is Gichik Thomas. So he's also there in our film, and you'll be really amazed to see him in that character, because उसका काफ़ी छोटा रोल है, but very impactful. And the way he has done, people will not believe कि he is the same guy from that film. Okay. तो हाँ, he was a really surprising element for me. तो actually I know him from before, क्योंकि वो अरुणाचल मैन में भी था, ऐसे ही साइड कैरेक्टर था, एक पंच खा के गिर जाता, ऐसा कुछ था. बट इन दिस फिल्म आई थॉट कि नहीं, जागीर में देखने का है पोटेंशियल, बट हाँ, गाइडेंस एंड राइट डायरेक्शन का जरूरी है. सो ही इज इन दिस फिल्म, सो लुक आउट फॉर हिम. ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आई फील ना यही है like अरुणाचल में, like I feel like we have like
पोटेंशियल एक्टर्स true. दे नीड गाइडेंस. True, तो true. कोई कोई क्या होता है कि उन लोगों के अंदर बहुत सारा बॉलीवुड घुस जाता है, तो वो True. करने की कोशिश करते हैं. बट आई थिंक जब वो लोग अपना क्राफ्ट को समझेगा जी. एंड कोई अच्छा गाइडेंस मिलेगा, True. लॉट्स ऑफ गुड एक्टर्स आर गोइंग टू कम आउट. हमको ऐसा लगता है. Definitely. सो अपार्ट फ्रॉम दैट नामसाइज प्रोजेक्ट जी, कुछ जी. और आगे प्रोजेक्ट है? एक मतलब वही असिस्ट करने का बात चल रहा है मुंबई में, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज थोड़ा फैमिली कमिटमेंट्स भी है इधर. सो आई एम स्टिल ड्वेलिंग बिटवीन दैट. बॉम्बे कब शिफ्ट होना है. We were planning to shift to Bombay. डेफिनेटली बिकॉज आई सी माई सेल्फ वर्किंग देयर. क्योंकि आई वॉन्ट अभी थोड़ा जब भी और 2-3 साल तो आई कैन गिव इट, आई कैन स्लॉग इन बॉम्बे, असिस्ट करके थोड़ा सा, मतलब बिकॉज वहाँ जाने से जो इंडस्ट्री बढ़ा है उनका, दे हैव ए वाइडर यूनिट, दे हैव ए वाइडर लाइट्स, वाइडर स्केल इटसेल्फ टोटली. तो Okay. वो सब सीखने को मिला. दैट आई रियलाइज आफ्टर वर्किंग इन भेड़िया. बिकॉज भेड़िया में काम करने के बाद आई रियलाइज कि हम लोग भी ट्रायल एंड एरर ही करते हैं, वो लोग भी वही करते हैं. बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज इट, हाउ यू मैनेज द स्केल, हाउ यू मैनेज सच बिग यूनिट. सो वो सब उस वे में मुझे सीखना है और भी काफ़ी. सो आई डेफिनेटली वांट टू गो टू बॉम्बे एंड Pursue. हाँ, इफ नॉट फॉर लाइक होल लाइफ बट एटलीस्ट फॉर फ्यू इयर्स. Okay, फिर उसके बाद सीख के वहाँ से फिर you are going to True, come back to true, Arunachal. true. Okay, ये भी अच्छा प्लान है. So like how are you like as a son, like कैसा है फैमिली में इक्वेशन कैसा है? I hope I'm a good son. उन लोग का रिव्यू क्या रहता है about your work? I am the youngest, so obviously I get lots of love from everyone. Okay, youngest are the luckiest, I guess. Yes, that's why I really appreciate my brother, because my brother, my sister, they all had to sacrifice so much on their dreams and aspirations just to be more secure about the family. So मेरा brother हो गया, मेरा 2 सिस्टर है, एल्डर सिस्टर है, उन दोनों भी काफ़ी, दे आर ऑल गुड इन स्टडीज. बट एक मैं ही हूँ जो आई वाज द वन हु फ्लंक्ड इन फिजिक्स इन 12th. I think physics ने सबको मारा है. हाँ, but that was good, because why? उसके बाद my father was posted in zero. In that 1 year when I was preparing for my re-examination, that time I discovered when I went to zero, मैं जैसे zero enter किया तो वहाँ में सुबु गम्बो का फिल्म का एक पोस्टर लगा हुआ था. आई फॉरगॉट द नेम, बट आई वाज सो इंट्रिग कि मतलब ऐसा अपना लोकल फिल्म का भी मार्केटिंग हो, तो देख के मैं आई वाज सरप्राइज. सो आई वाज रियली इंस्पायर्ड बाय देम, इवन इफ दे डोंट हैव एनीथिंग बट दे वर स्टिल मेकिंग फिल्म्स. फिर उसी दौरान संगे दोरजी को भी डिस्कवर किया. सो इट इंस्पायर्ड मी इवन मोर टू परस्यू दिस एज अ ड्रीम, टू परस्यू दिस एज माई कैरियर. तो हाँ, तो दैट 1 year was very 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 lucky for me. In terms I feel flunked, but I got to realize that what I want to do in my life. So zero is lucky for Zero you. is lucky for me. भेड़िया भी भेड़िया हुआ भी हुआ, ये भी हुआ. And my first short film also I made it in zero only. So in that way, yeah, zero has contributed indirectly or directly so much to my career. I think zero शोले भी था पहले बचपन में. हाँ, वो भी देखा था तब. देखा ना? उस समय डिस्कवर किया ये सब हम. तो वो सब डिस्कवर करने के बाद आई रियलाइज ना कि लोग बनाते हैं. आई हैड एन इंटरेस्ट टू इट, बट संगे दोरजी को देखने के बाद आई रियलाइज कि नहीं, मुझे भी यही करियर करना है. So any message to the जो like people जो आपको फॉलो करते हैं, like they want to be an aspiring क्या बोले aspire filmmakers in futures, कुछ बोलना है उन लोगों को? वही है, आप मतलब ऑब्वियसली देयर विल बी लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, बिकॉज अरुणाचल में तो इस फील्ड का इंडस्ट्री है नहीं अभी, बट इट विल कम अप. अभी फिल्म इंस्टीट्यूट भी आ रहा है इधर. आई थिंक नेक्स्ट ईयर से फंक्शनल हो जाना चाहिए, जितना तक हमें पता है. तो डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स ऑब्वियसली, बिकॉज जितना आप उस पर आप टिके रहोगे, अल्टीमेटली वन डे और द अदर यू विल बी बेनिफिटेड ऑफ इट. एंड डो नॉट गिव अप वट एवर पीपल से. आप जस्ट फोकस करो, वॉच गुड फिल्म्स, read good books, and try to observe our own surrounding, try to observe our own society. उसी के ऊपर फिल्म्स बनाओ, उसी के ऊपर मोर फोकस करो. We have to be true to ourselves to make something original. We don't have to literally follow Hollywood, Tollywood, Bollywood. आप अपना ही पहचान बनाना चाहते हैं फिल्म्स के जरिए. That's not just in terms of writing or direction, but as a cinematography also. आप अपना एक ट्रेडमार्क स्टाइल बना के रख सकते हैं. तो yeah. Okay, so what is your like future जैसे कि आपके ऐसे फिल्म मेकर यू हैव एक वन बकेट लिस्ट ना कि ऐसा टाइप का मूवी बनाना है. सो व्हाट
like कौन सा ऐसा genre का movie है that you want to try in future? That's what my abhi to I was focusing more on cinematography part. But if you say in terms of directing, it's completely organic. The story that I want to make, वो suddenly मुझे hit करता है. No, I want to focus on this part. I want to focus on that part. तो जैसे अरुणाचल में मैंने उस समय वैसा था, लेकिन अभी संगी गाय बना था. I wanted to do something for the society, which has some context to the society. But मेरे mind में अभी चल रहा है next film के लिए it's more to do with coming of age kind of film. Still cooking, so that is the one genre which I could definitely want to explore, coming of age type of film about our people in Arunachal. Or as a filmmaker, who are the people that you follow? I'm a big fan of Wong Kar-wai, so that's what I'm saying. His films are more of melancholy and coming of age. तो मेरा भी ऐसा है, तो melancholy coming of age वाला type. तो Wong Kar-wai is really one filmmaker that I follow. And India में बोलने से Satyajit Ray obviously. And in modern times, if you say India में Bollywood में, तो obviously it keeps shifting. क्योंकि because sometimes they make good films, sometimes they make bad. So there's not anyone, but it depends on the films that they make. Okay. Have you ever thought of making any horror movie? I made one short. It was semi-horror. So एक था ना? A Tale of Two Lives. I did try that genre. So I think horror is very interesting and a very, like a genre which everybody will connect to and everybody likes to watch. तो yeah, definitely है. लेकिन horror के लिए ऐसा है ना, horror and comedy are the toughest to make. Because a comedy जो आपके लिए कॉमिकल होगा बट इट माइट नॉट बी फॉर दी अदर, तो वो आप यूनिवर्सल कॉमेडी कैसे बनाएं. और हॉरर का भी ऐसा है कि वो आपका वो सडन वो जंप हॉरर वाला फिल्म नहीं बनाना है. हॉरर ऑल्सो हैज टू बी लाइक दैट विच विल आपका गूज़बम्स खड़ा करते हैं. ऐसा होना चाहिए. तो यस डेफिनेटली, एंड हॉरर करने का भी मन है काफ़ी. I've watched that movie. अच्छा था वो. थैंक यू सो मच. एंड जो लोकेशन था ना, वो एक जगह है, पत्थर का अंदर में जाते क्या, वो लोकेशन कहाँ है ना? दैट इज इन जोलांग. We had to walk almost कितना 4 an hour or so just to get that 2 shot. Okay. तो वो जोलांग के अंदर में है वो कहीं. तो आई ऑल्सो डोंट रिमेम्बर द रूट एग्जैक्टली, पर अभी वहाँ फुटसल ग्राउंड है शायद, उसके पीछे से जाता है, ऐसा कुछ है. That place ना, वो बहुत मजा है. लाइक वो जो लोकेशन है, that gives a different vibe ना वीडियो को लेके. Okay, so recently you went to Cannes Festival. Yes. So कैसा था? How it happened? वो process पहले बताइए. So वही information and broadcast ministry were responsible for taking us. So they wanted 12 people from Northeast, 2 from each state. They wanted to take film persons over there. तो उन्होंने अपना CV submit करने को बोला हर किसी को. तो I also submitted my CV for that. And so me and Sunka were shortlisted from Arunachal. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उधर जाना भी, because I was not expecting कि my first international film festival will be Cannes. Cannes is one of the biggest film festival in whole world. So it was a very good experience, and obviously अपना सब a very influential filmmaker नूरी बिलाल चिलन, उसका काफ़ी सारा फिल्म आप अगर देखेंगे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बट ही इज़ ए वेरी रिनाउंड फिल्म मेकर फ्रॉम टर्की. तो उसको मुझे लाइव उसका प्रीमियर शो में देखने को मिला. सो दैट वाज लाइक विजिटिंग ए टेम्पल एंड सीइंग द गॉड डायरेक्टली ओवर देयर. तो ऐसा मेरे लिए था वो. दैट मोमेंट फॉर मी. सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड आई गॉट टू लर्न सो मच. आई मेट सो मेनी फिल्म मेकर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. Fortunately, I met Kashyap also over there. अपना विक्रमादित्य मोटवाने, अपने इंडियन का फिल्म मेकर्स भी थे उधर, and many other filmmakers, and I got to meet so many new people and got to learn so much. So that is also my one ultimate dream कि I also have to go there. So, अभी तो इस बार तो we went without film, but I want to go there with a film next time. Yeah. So like वहाँ पे जब जाते हैं, like the expenses, everything is paid by government. That was paid because it was covered by Information and Broadcast Ministry. But obviously, if your films get selected, the festival will bear all the expense for you. Okay. So yeah, next time hopefully, next time kabhi. So I think it's time to wrap up. So, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you so much for having me in this show. And it's nice. मतलब खुल के बात कर सका है. So it's good to be more comfortable and talk about everything openly. Okay. So यही था Small Talk, यही था podcast. So
Have you felt you gave something controversial? I don't know. I don't know. If not for others, my family, I guess. I have a good son बोल दिया घर जाके तो. Okay. So it's a wrap. Thank you so much, Thank you. Nyago, for coming to Small Talk. And we have a hamper for you. अरे. A token of appreciation for your precious time. And thank you so much for being so informative. This is for you. Thank you so much. Thank you. हो गया. अरे ये तो कॉफी विद करण हो गया तो कोई और नहीं चिंता. Thank you. अरे अच्छा है यार. Thank ठीक you है, so ये much. बंद कर दिया. In a small talk with Koko.